Hello friends, this is your surgery ka dost DRM Dr. Rakesh Mittal. So today's topic for our surgical punch is molecular classification of breast cancer. It's highly confusing topic for many of the students, but it is very commonly asked in both NEET and INICET exams. So I'll try to simplify it for you because my main motto is once you understand it, then you own it and you know it without any rectification involved, right? So that's the punchline. Lovely lover and husband badmash. So जिनकी शादी हो चुकी है, they already know it, they are going through it. My sympathies. I am also in the same group, right? And जिनकी शादी नहीं हुई है वो कुछ टाइम बाद समझ जाएंगे, right? So before marriage, when you are a lover, everything is lovely, rosy, and once you become husband, you become a villain, that is badmash. So everything will rotate around this punchline, right? Let us see how. Okay, so first is the types of molecular classification of breast cancer. So lovely, lover, husband, badmash. So lovely, luminal A. Second, lover, luminal B, L for L. Then husband, H, HER2 positive or HER2 enriched. And then last is badmash B, basal-like. Right? Now, as I've already told you again, the presence or absence, the composition of the molecular markers in these four categories. So lovely lover. Lover is a hero. Right? So when you are a lover, you are a hero. So hero is present in these two situations. Right? Husband is a villain, badmash. So it's villain that dominates in these two categories. So we'll see one by one. First, you need to know what is a hero and what is a villain. Now for patients with breast cancer, hero is ERPR receptors, estrogen and progesterone receptors, because patients where the tumors are positive for ERPR receptors, so endocrine therapy can be used as a treatment after the surgery. Okay, villain is HER2 receptors, human epidermal growth receptors. So it's a poor prognostic marker. HER2 positive cancers, it's a poor cancer, bad cancer. So it's a villain. Ki67 एक छोटा villain है, HER2 बड़ा villain है. Ki67 is a proliferation marker. अगर ये कम है तो proliferation कम है ट्यूमर का, अगर ये ज़्यादा है तो proliferation ज़्यादा है, right? So हम अगर पिछली स्लाइड पे जाएं तो पहले दो जो ल्यूमिनल ए ल्यूमिनल बी, लवली लवर, इनमें हीरो डोमिनेट करेगा, विलेन वीक होगा या एब्सेंट होगा. हस्बैंड बदमाश, इन दोनों सिचुएशंस में विलेन डोमिनेट करेगा और हीरो वीक होगा या एब्सेंट होगा, राइट? ओके, सो विल सी वन बाय वन नाउ. फर्स्ट इज लवली ल्यूमिनल ए, जिसमें हीरो डोमिनेट करता है, विलेन नेगेटिव होता है. सो लेट अस सी. Hero is present, okay? So ERPR positive, villain is absent, right? So HER2 negative है और Ki67 is low, right? Less than 14%, right? So that's a perfect situation कि हमारा hero strong है, villain completely absent है. So that makes it best prognosis, right? So question can be asked in any form. This combination of receptors and or which type has best prognosis. So that's how you remember it. This is one of the easiest way I have found to understand it and remember it. Then luminal B. How to remember luminal B? Luminal B is almost same as luminal A. Just remember B. B से हमारा निमोनिक क्या था उसमें? लवली लवर, हस्बैंड बदमाश. So B है एक ही जैसे ही, बट थोड़ा सा बदमाशी वाली साइड चला गया. मतलब हीरो तो है बट विलन थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर हो गया इसमें, राइट? सो दैट्स हाउ यू रिमेंबर इट. ओके, सो हीरो हमारा सेम है, ERPR पॉजिटिव. विलन जैसे मैंने बताया, बिकॉज बी थोड़ा बदमाशी साइड चला गया तो विलन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो सकता है. तो इसमें दो वेरिएंट्स होते हैं, या तो Ki67 हाई हो गया, ए में लो था बट यहाँ हाई हो गया तो विलन थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया, राइट?
और दूसरा वेरिएंट हो सकता है HER2/neu नॉर्मली नेगेटिव होता है, बट HER2/neu कुछ वेरिएंट्स में पॉजिटिव हो सकता है। सो दो हमने विलेन की बात की थी, HER2/neu और KI। तो यहां दोनों बदमाशी कर सकते हैं थोड़ी, KI67 हाई हो सकता है या फिर HER2/neu पॉजिटिव हो सकता है। तो अगर हम A और B को कंपेयर करेंगे तो A हैज बेस्ट प्रोग्नोसिस, B थोड़ा सा पुअर हो गया बिकॉज विलेन यहां बदमाशी पे आ गया। ओके, नाउ थर्ड, HER2/neu पॉजिटिव हस्बैंड, HER2/neu एनरिच। तो यहाँ हीरो नहीं है, विलन स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो विलन ऑलरेडी द नेम इटसेल्फ टेल्स यू HER2/neu पॉजिटिव, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विलन, राइट। सो हीरो हमारा नेगेटिव है, ER/PR नहीं है। नाउ हीरो की सपोर्ट खत्म हो गई वंस मैरिज इज डन। सो विलन इज स्ट्रॉन्ग नाउ। सो HER2/neu पॉजिटिव, दोनों विलन स्ट्रॉन्ग है। KI67 भी हाई है और HER2/neu भी पॉजिटिव है। So very poor prognosis, very poor prognosis. Okay, so that's HER2/neu enriched और HER2/neu positive. अब चौथे कैटेगरी हमारा बचा है बदमाश, right? So basal like, B for B. इसमें एक और B से बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, ठीक है। कॉम्बिनेशन यहाँ अलग है, अब यहाँ पे विलेन बदल जाता है। यहाँ पे हमारा जो हमने पहले विलेन की बात की थी HER2/neu यहाँ नेगेटिव ही है, तो ये वाला विलन हमारा एब्सेंट है। तो फिर ये बदमाश क्यों है? विलन कौन सा विलन? यहाँ पे एक नया विलन पिक्चर में आ गया, एंड में अचानक से एक नया विलन प्रोड्यूस हुआ, BRCA1। दीज पेशेंट्स दे आर, ये जो कैटेगरी है बेसल टाइप, ये सबसे कॉमनली दिखती है BRCA पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर जीन। ऑल ऑफ यू नो BRCA1 म्यूटेशंस एंड इट्स अगेन अ पुअर मॉलिक्यूलर मार्कर फॉर ब्रेस्ट कैंसर, पुअर प्रोग्नोसिस, राइट। सो हमारा हीरो एब्सेंट है, विलेन। सो अगेन B फॉर B, इजी टू रिमेंबर, कोई बहुत इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि हमारा जो विलन अभी तक हम बात कर रहे थे HER2/neu। एक और तरीका इसको याद करना है, हमारे लास्ट के दो कैटेगरीज है हस्बैंड और बदमाश। तो हस्बैंड में विलन है H फॉर H, दैट इज HER2/neu, और बेजल बदमाश B फॉर B, यहां विलन है BRCA1, राइट। एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद करने की, यहाँ पे हमारे मेन 3 मार्कर्स जिनसे हमने कहानी शुरू की थी, ER/PR और HER2/neu, तीनों नेगेटिव हैं। तो इसलिए इस कैटेगरी को एक स्पेशल नाम भी दिया जाता है, ट्रिपल नेगेटिव। सो ट्रिपल नेगेटिव, वाई ट्रिपल नेगेटिव? ER/PR एंड HER2/neu, तीनों मेन रिसेप्टर्स हमारे नेगेटिव हैं, एंड बिकॉज ऑफ BRCA1 म्यूटेशंस दिस इज द वर्स्ट प्रोग्नोसिस, ब्रेस्ट कैंसर विद वर्स्ट प्रोग्नोसिस। सो बेस्ट किसका है? ल्यूमिनल A। वर्स्ट किसका है? बेसल टाइप। ट्रिपल नेगेटिव कौन सा है? बेसल टाइप, राइट। HER2/neu सबसे ज्यादा स्ट्रांगली पॉजिटिव किसमें है? वो HER2/neu एनरिच में, राइट। सो नाउ दिस इज द बेस्ट वे हाउ टू रिमेंबर द प्रोग्नोसिस, किसमें हीरो है, किसमें विलन है, कौन से रिसेप्टर्स का क्या कॉम्बिनेशंस है, सारा आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, राइट। ओके, थैंक यू गाइज फॉर टॉलरेटिंग मी एंड लिसनिंग टू मी। ऑल द बेस्ट।